Hello students, in our last class we saw how the different policies adopted by the British government in India was unpopular amongst the Indian people. How the plan and policies of the British government to acquire Indian territories was even not suited to the Nawabs and rulers of India. And all this discontentment among people as well as the rulers of India finally resulted in a big rebellion against the British. Even if this rebellion started with a group of soldiers who were dissatisfied and started a mutiny, but then slowly this mutiny became a popular rebellion. Though struggles between rulers and the ruled are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread. It's a popular resistance so that the power of the state breaks down. ये दुनिया में हमेशा होता है, पूरी वर्ल्ड में जब भी रूलर्स लोग ऐसा कुछ रूल्स बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं जो लोगों के लिए सुटेबल नहीं होता है, तो पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. जब कभी इस तरह का रिबेलियन होता है और जब हर लोगों को लगा कि ये जो पॉलिसी है, प्लान्स एंड पॉलिसीज है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सूटेबल नहीं है, तो वो रिवोल्ट करने के लिए आगे आए. उनको लगा कि हम सबके कॉमन एनिमी जो है वो ब्रिटिश है. लेकिन इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, प्रॉपरली लोग ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और कोई ना कहीं से इनिशिएटिव लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी लोगों के अंदर होना चाहिए कि आप कैसे रिवोल्ट करना चाहते हैं. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. आपको पता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश ने इंडिया को रूलिंग करना स्टार्ट कर दिए थे. एंड टिल 1857 इट्स एग्जैक्टली 100 years. Right? Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. As I told you, even if this rebellion started from a soldier camp, and it was from Meerut in UP, but then slowly many sections of society joined it. Some regards it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. कुछ स्टूडेंट्स इसको मानते हैं कि ये कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक बड़ा रिवोल्ट बाय द आर्म्ड फोर्स. अब देखते हैं कैसे ये रिबेलियन even if it started from Meerut, how it reached to Delhi. And if you'll see Delhi, why it's reached to Delhi? Because if you'll see in those days or in that time, Delhi was still under the administration of the Mughals, right? So the Mughal ruler was still the ruler of India, even if the then Mughal ruler had not very powerful or he had no power. On 29th March 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge, which were suspected of being coated with the fats of cows and pigs. आप लोगों ने मंगल पांडे मूवी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने जो न्यू राइफल आया था, एक बंदूक आया था जिसमें कैटरीज तोप डालने के लिए पहले उसके ऊपर एक कोट होता था, उसको दांत से टेयर करना पड़ता था. ये सुनने को मिला था कि उसके ऊपर जो कोट है वो काउज और पिग्स का फैट से बना हुआ है. और मंगल पांडे ने इसके खिलाफ जब कंप्लेन किए और जो आप उनके ऑफिसर को अटैक किए तो उनको फांसी दे दी गई थी. 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to
10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9th March 1857. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. बाकी सब सोल्जर्स ने जब अटैक किए, उन जिनको बंदी बना लिया गया था उनको रिलीज किए और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर दिए. They captured guns and ammunitions and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. फिरंगीज वही ब्रिटिश लोग को फिरंगीज कहा जाता था. तो ये ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध या जंग छेड़ना उन लोगों ने डिक्लेयर कर दी. द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री. सोल्जर्स लोग ये डिसाइड किए, उनको लगा कि अब टाइम आ गया, अब हम ब्रिटिश रूल को भारत से हटा देंगे. बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर. जब उनको लगा कि ब्रिटिश को तो हटा देंगे तो इंडिया का राजा कौन बनेगा, कौन रूल करेगा, तो इसमें सब लोगों का सहमति हुआ कि जो दिल्ली में अभी भी मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर, उनको या बहादुर शाह सेकेंड, उनको हम राजा बनाएंगे. The sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion. जब ये सब मीरठ से दिल्ली आए और दिल्ली में जो ब्रिटिश का सोल्जर्स था और इंडियन सोल्जर्स थे, वो भी क्या हुआ कि जब उनको ब्रिटिश सोल्जर्स को वो तो बहुत कम थे, उनको हरा दिए, और जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी उनके साथ मिल गए. अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड अम्यूनिशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर. वहाँ दिल्ली में भी आकर वो लोग क्या किए कि जो सब अस्त्र शस्त्र थे, तोप वगैरह थे, बंदूकें थे, इन सबको कैप्चर कर लिया और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिए. और जो ब्रिटिश बिल्डिंग वगैरह हुआ करता था जहाँ पे अम्यूनिशन रखा जाता था, अस्त्र शस्त्र रखा जाता था, उसको जला दिए. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. ये सब सोल्जर क्या किए, जब इनके लगा कि हम ब्रिटिश के खिलाफ जीतना स्टार्ट हमारी हो गई, तो इन लोगों ने क्या किया, रेड फोर्ट की चारों तरफ जाके started shouting to meet बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. जब मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बोला कि बहादुर शाह के पास इतना पावर नहीं था, तो ये डर गए थे, लेकिन सोल्जर्स ने उनको किसी तरह से मनाया. They forced their way into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफर as their leader. इन लोगों ने क्या किया, ये जो फोर्स थे, जो सोल्जर्स थे, जो मीरठ से आए थे और दिल्ली के सोल्जर्स उनके साथ मिले थे, इन लोगों ने सब मिलके बहादुर शाह जफर को अपना रूलर्स डिक्लेयर कर दिया, अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया. द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड. उनका एज हो गया था, वो काफ़ी एज हो गया था उनको, तो उन्होंने क्या किया, लोगों की ये डिमांड या सोल्जर्स की ये डिमांड को उनको मानना पड़ा. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. इन्होंने लेटर लिखा पूरे इंडिया में जितने रूलर्स थे, आसपास के जितने रूलर्स थे, सबको चिट्ठी लिखे कि सब एक साथ मिलके एक यूनिटी बनाए ताकि ब्रिटिश को हरा सके. दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस. ये जो स्टेप बहादुर शाह ने लिए, ये आगे इसका क्या नतीजा हुआ, कैसे क्या हुआ, ये भी देखेंगे. द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal rulers. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. कुछ लोगों को ये लगा जो मुगल के अंडर छोटे छोटे सूबेदार गवर्नर बन के दूसरे एरिया रूल करते थे, उनको लगा कि अगर दोबारा बहादुर शाह जफर के हाथ पावर आ जाएगा तो इन लोगों के अंडर में भी जो एरिया था वो भी उनके हाथ में आ जाएगा. द ब्रिटिश हैड टू एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन. दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कैटरीज वुड डाई डाउन. उनको लगा कि ये जो कैटरीज वाला इशू था उसको ख़त्म करना चाहिए, ब्रिटिश को लगा कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा. बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू प्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली.
अगर ब्रिटिश सोच रहे थे कि इसको ये कैटरेज वाला इशू ख़त्म करें, लेकिन बहादुर शाह ने जब ऐसा एक डिसीजन ले लिया, ये सिचुएशन बहुत चेंज हो गया, सडनली चेंज होने लगा, ड्रामेटिकली चेंज होने लगा। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act. जब लोगों को लगा और बाकी सोल्जर्स को लगा कि बहादुर शाह जफर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका एक उम्मीद, उनके अंदर एक उम्मीद दिखाई दी और उनके अंदर साहस आ गया, एक आशा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। The rebellion spread. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. Then a spurt of mutinies began. जब दिल्ली में ऐसा हुआ और ब्रिटिश को हरा दिए, थोड़ी दिन के बाद शांत हो गया करीब एक हफ्ते के लिए, फिर धीरे धीरे ये न्यूज़ जो है चारों तरफ फैल गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक off to join other troops at nodal points like दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जो मेन सेंटर में सभी रेजिमेंट्स जो ब्रिटिश के अंडर थे, इंडियन सोल्जर इंडियन रेजिमेंट्स में थे, ये सब इकट्ठा हो गए और दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ में रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। After them, the people of the town and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. तो ये धीरे धीरे विलेजर्स, पीपल लाइक फार्मर्स, दे ऑल्सो स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द लोकल लीडर्स लाइक जमींदार, those who supported British, and they started complaining about different plans and policies of the British. Nana Sahib, the adopted son of late Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Jafar. जो पेशवा बाजीराव के एडोप्टेड सन हुआ करते थे नाना साहब, जिनको ब्रिटिश ने नहीं माने थे। हमने देखे थे डॉक्टर फ्लैप्स में कैसे उनके जिनके बेटे नहीं होते हैं, उनके सब एम्पायर को ब्रिटिश अपने एम्पायर में मिला लेते थे। लेकिन यहाँ पे नाना साहब जो पेशवा बाजीराव के एडोप्टेड सन थे, उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं एक गवर्नर हूँ, बहादुर शाह जफर के अंडर एक गवर्नर हूँ और मैं पेशवा बाजीराव के एडोप्टेड सन हूँ। मुझे मेरी एम्पायर चाहिए और मेरे एम्परर बहादुर शाह जफर है। इन लखनऊ, बीरजी कादर, द सन ऑफ deposed Nawab Wajid Ali Shah, who proclaimed the new Nawab, he too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Jafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. यहाँ पे भी लखनऊ में भी जो बीरजी कादर और जो बेगम हजरत महल के बेटे थे, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, इन लोगों ने भी यहाँ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल सिपॉयज एंड फॉट द ब्रिटिश along with तांतिया टोपे, द जनरल ऑफ नाना साहब। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोडी ऑफ रामगढ़ raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of Hashtag। ऐसे अलग अलग जगह में लोगों ने जिनका एम्पायर को ब्रिटिश ने सन नहीं, प्रॉपर हेयर नहीं होने की वजह से मिला लिया था अपने साम्राज्य में, वहाँ धीरे धीरे इन लोगों ने इंडिपेंडेंस लेना शुरू कर दिए। उन लोगों ने रिवोल्ट करके ब्रिटिश सोल्जर्स जो वहाँ करते थे उनको हटा के अपना अधिकार छीनना स्टार्ट कर दिए। द ब्रिटिश वर ग्रेटली outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. जब अलग अलग हिस्से में छोटे छोटे एरिया में और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इस टाइप का एरिया में जब ब्रिटिश सोल्जर्स का हार हुआ तो लोगों को लगने लगा कि अब ब्रिटिश रूल ख़त्म होने का टाइम आ गया है। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. अवध में भी ऐसा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया भारी मात्रा से। On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colin Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are
cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. इन्होंने लिखा कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे खिलाफ सब लोग हैं, तो क्या किया जाए. Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. सिर्फ रूलर्स नहीं, कुछ मौलवी, कुछ रिलीजियस लोगों ने भी, मुस्लिम रिलीजियस लोगों ने भी ये लोगों के अंदर ये प्रचार किया कि अब धीरे धीरे ब्रिटिश रूल ख़त्म होने का टाइम आ गया है. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the White Empire. ऐसे धीरे धीरे मुस्लिम हिंदू सब मिलके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दी और उनको लगा कि अब टाइम आ गया है, हम ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकेंगे, ब्रिटिश रूल को भारत से उखाड़ फेंकेंगे. Bakat Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old zamindar, Kanwar Singh, joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. खास करके आप देखेंगे पूरा नॉर्थ इंडिया जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार टिल दिल्ली और पंजाब, people were together to fight against the British. So in your next class we will see what had happened after this.